Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to begin with creative writing and soft skill, and in that we're going to focus on Werner Wolf and his essay Description as a Transmedial Mode of Representation, where he basically talks mainly about literature, then our painting and music, these three mediums. And I am going to try to explain it to you in the most easiest manner so that it really helps and you need not to go back and check out the whole essay. I'll attach my handwritten notes as well. I'll make a separate short video on that, and I'll give the link of the description either on I'll pin it in the comment section, or you can find in the description box. So let's begin. Let's begin with Werner Wohl's idea. So, what is he basically trying to say in the essay? Werner Wolf basically talks about description. Now, he says description, you know what it is, like describing something, right? So, he says that description is not only limited to literature. His main idea is description एकमात्र literature तक ही सीमित नहीं है, बट इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स जैसे पेंटिंग हो गई, म्यूजिक, फिल्म, फोटोग्राफी एंड अदर आर्ट्स. मेजर आइडिया अगर आप बात करो यहाँ पे, सेंट्रल आइडिया यही है कि जो आपकी डिस्क्रिप्शन है, द आर्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग, वो सिर्फ लिटरेचर में नहीं होती है, वो अदर आर्ट फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट करती है. आप फिल्म देख लो, उसमें डिटेलिंग दी जाती है. पेंटिंग ले लो, पेंटिंग में विजुअल डिटेलिंग्स दी जाती है. म्यूज़िक में म्यूज़िक की बात करो तो म्यूज़िक एज एन आर्ट फॉर्म ऑल्सो शोज डिस्क्रिप्शन. एंड ओवरऑल ही गिव्स हिज रीजंस. आगे हम उसके रीजंस के बारे में भी बात करेंगे. So, this is the main idea that description is not limited to literature, but it can also exist in different art forms. Traditionally, critics used to study description mainly in literature, basically novels or poetry, but Werner Wolf considered that this approach is too narrow. And he considers, सबसे important part आ रहा है, that he considers that description is a transmedial phenomena. सबसे इम्पोर्टेंट, पहले तो आप मेजर आइडिया के बारे में बात करोगे कि उसका मेजर आइडिया यही है कि डिस्क्रिप्शन लिटरेचर में ही लिमिटेड नहीं है, वो उसके अलावा काफ़ी आर्ट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है. दूसरा पॉइंट जो आप मेनली मेंशन करोगे अपने आंसर्स में, दैट इज़ गोइंग टू बी ट्रांसमीडियल फिनोमेना, कि डिस्क्रिप्शन एक ट्रांसमीडियल फिनोमेना किस तरीके से है. इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाते हैं. When I was in my masters, I just completed my masters yesterday and gave this creative writing exam yesterday. I got this question of this transmedial representation, so this is important. तो आप कहोगे कि डिस्क्रिप्शन एक ट्रांसमीडियल फिनोमेना है. अब ट्रांसमीडियल फिनोमेना क्या होता है? ट्रांसमीडियल फिनोमेना का मतलब है दैट इट कैन अपीयर इन डिफरेंट मीडिया. वो अलग अलग मीडिया, वो अलग अलग मीडियम में एग्जिस्ट कर सकता है. आई नो ही सेइंग द सेम थिंग बट अलग अलग तरीके से. बट आपको कुछ वर्ड्स, की वर्ड्स याद रखने हैं. ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दी. दूसरा आप बताओगे दैट डिस्क्रिप्शन इज अ ट्रांसमीडियल फिनोमेना विच मीन्स इट कैन अपीयर इन डिफरेंट मीडिया. And then you talk about that Werner Wolf says that description is not tied to one medium only. जैसे वो कहता है कि सिर्फ लिटरेचर के साथ टाइड नहीं है डिस्क्रिप्शन. सो ही सेइंग दिस ओनली repetitively that description is not tied to one medium only, rather it is a way of organizing scenes and presenting objects, emotions and experiences. So when we talk about what is the meaning of this transmedial phenomena, we say that something transmedial means that something that exists across different media. ट्रांसमीडियल अगर हम टर्म का मतलब ही कहें तो उसका मतलब ही ये है कि कोई चीज़ जो अलग अलग मीडियम्स के द्वारा हमें मिलती हो. ठीक है, मीडियम्स को अब मुझे उसका हिंदी वर्ड नहीं आता है, बट अलग अलग आर्ट फॉर्म्स में ले लो आप, कि जो हमें अलग अलग आर्ट फॉर्म्स में मिलती है या दिखती है, तो उससे भी हम उसको देख सकते हैं. जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें नरेशन का, नरेशन फिक्शन में भी है, नरेशन फिल्म्स में भी है. एंड उसी तरीके से हमारे वर्नर वुल्फ करते हैं कि
Description can also appear in fiction, it can appear in arts, it can appear in painting, music. ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन और नरेशन का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका आता है वार्नर वुल्फ के ऐसे में, एंड वो हम आगे लेके चले गए। अभी हम बात करते हैं वन मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज वुल्फ एक्सप्लेन्स दैट डिस्क्रिप्शन इज अ सिमियोटिक मैक्रो मोड। सिमियोटिक मैक्रो मोड क्या मतलब है इसका? मैक्रो तो यू नो, माइक्रो इज छोटू, मैक्रो इज बड़ा, बड़ा पिक्चर ले लो उसका, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन एक सिम्योटिक मैक्रो मोड है, विच मीन्स कि एक ब्रॉड मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, जहाँ पे डिफरेंट आर्ट्स अपने तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रियलाइज करते हैं। सो व्हेन you are going to write this point as well, this is the third important point, that he describes description is a semiotic macro mode, which means that it is a broad mode of representation that different arts can realize in their own ways। ये ब्रॉड रिप्रेजेंटेशनल या यूनिवर्सल वे है जिसे डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, डिफरेंट मीडियम्स अपने तरीके से रियलाइज करते हैं, अपने तरीके से अपनाते हैं और दर्शाते हैं। सो बेसिकली व्हेन वी मूव फॉरवर्ड और हम सेंट्रल आर्गुमेंट पे आते हैं ऐसे के, तो आप देखोगे कि वो कहना चाह रहा है कि बार बार यही कहना चाह रहा है, डिस्क्रिप्शन लिटरेचर से ही रिलेटेड नहीं है, उससे बियॉन्ड भी है। एंड ही सेज दैट डिस्क्रिप्शन इज नॉट ओनली वर्बल। जब हम डिस्क्राइब करने की बात करते हैं तो पहला थॉट अगर हमारे दिमाग में आता है तो इट यूजुअली इज थ्रू वर्ड्स। सो यही नोशन वो कह रहे हैं कि लिटरेचर शुड नॉट बी लिमिटेड ओनली टू वर्बल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। द डिस्क्रिप्शन इज नॉट ओनली वर्बल या फिर लिटरेरी, बट इट इज़ अ यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशनल मोड दैट इज फाउंड इन मेनी आर्ट्स, दैट इज फाउंड इन मेनी मीडियम्स। And he also challenges the old idea through this that only language can describe। क्योंकि बीट यू बीट मी पहला थॉट जब डिस्क्रिप्शन का आता है तो हम नॉर्मली सोचते हैं थ्रू लैंग्वेज। हाँ, इफ़ यू आर क्रिएटिव यू कैन थिंक अबाउट पेंटिंग एज वेल, बिकॉज पेंटिंग्स टू डिस्क्राइब, म्यूजिक टू डिस्क्राइब्स, so you need to be creative to think about that। Then we have talked about the basic idea, then we talked about description as a transmedial phenomena, transmedial का मतलब बताया आपने। Then we talked about description as a semiotic macro mode, ठीक है। सेंट्रल आइडिया बता दिया कि सिर्फ वर्बल नहीं होता है, 5 पॉइंट्स याद रख लेने हैं, छोटे छोटे से नोट्स बना देना। एंड देन वी टॉक अबाउट डिस्क्रिप्शन एज अ कॉग्निटिव फ्रेम। अब आप बोलोगे कि डिस्क्रिप्शन एक कॉग्निटिव फ्रेम है। वर्नर वुल्फ एक और आइडिया देते हैं कि जो डिस्क्रिप्शन होती है वो एक कॉग्निटिव फ्रेम की तरह है। किस तरीके से? कोई भी रीडर, लिसनर या व्यूअर जब भी कोई चीज़ डिस्क्राइब की जाती है या फिर उसको प्रेजेंट की जाती है, वो साथ ही साथ एक मेंटल इमेज क्रिएट करता जाता है। एवरी टाइम यू रीड अ बुक यू ड्रॉ अ मेंटल इमेज ऑफ what is being told to you or what is being described in the novel or in any fiction, whatever you are reading. Okay, so that's why he says that any reader, listener, viewer mentally imagines what is being represented to him or her, and description helps people to visualize or experience things। जैसे कि हम लिटरेचर के बारे में बात कर ले, वो बार बार तीन चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, लिटरेचर, पेंटिंग और म्यूज़िक। तो आप एग्जाम्पल भी इन्हीं के आसपास दोगे। जैसे हम लिटरेचर का एग्जाम्पल ले लें कि लिटरेचर में वर्ड्स जो है, वर्ड्स मेंटल इमेज क्रिएट करते हैं दिमाग में। पेंटिंग में कलर्स हो गए, शेप्स हो गए, टेक्सचर्स हो गए, वो एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग देते हैं। जितनी कलर्स की लेयर्स होगी उतना पीपल हु नो अबाउट पेंटिंग दे नो इट बेटर, उतनी लेयरिंग से कोई डेप्थ ऑफ मीनिंग समझ आएगा उन लोगों को। And then we talk about music. Music also describes, it creates mood, it creates atmosphere। और इसीलिए हम कहते हैं वर्नर वुल्फ का आइडिया है कि डिस्क्रिप्शन कहीं ना कहीं डिपेंड करती है हमारे ऑडियंस की इमेजिनेशन पे भी, पार्टली तो करती ही है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू डिस्क्राइब समथिंग और आप
आपके दिमाग में उसकी क्या छवि बन रही है, क्या उसकी आप मेंटल इमेज बना रहे हो, उस पे डिपेंड भी बहुत चीज़ें करती है। ज़रूरी नहीं है व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू आप उसको साफ कोरा वैसा ही समझो। वी ऑल हैव आवर ओन एक्सपीरियंसेस, तो हम उसे कहीं न कहीं थोड़ा तोड़-मोड़ के वैसे समझते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव डिफरेंट ओपिनियंस। नेक्स्ट दैट वी टॉक अबाउट इज कॉग्निटिव फ्रेम ईजी है। आपको पता है कि कोई डिस्क्रिप्शन दी होगी, उससे आपकी एक मेंटल इमेज बनती है एंड उसी के अराउंड आपको एग्जाम्पल देने हैं। लिटरेचर में कैसे होती है, पेंटिंग में कैसे हो रही है और म्यूज़िक में कैसे हो रही है। लिटरेचर में वर्ड्स के थ्रू, पेंटिंग में आपकी विजुअल अंडरस्टैंडिंग कलर्स के थ्रू हो जाती है। म्यूज़िक में आप ये सब ले लो कि म्यूज़िक मूड क्रिएट कर रहा है, एटमोसफेयर क्रिएट कर रहा है। देन वी मूव फॉरवर्ड टू द डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे जो वर्नर वुल्फ है वो कहते हैं वो थोड़ा फोकस दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन वर्सेस नरेशन पे। सो ही कंपेयर्स डिस्क्रिप्शन वर्सेस नरेशन। अब डिस्क्रिप्शन में जब हम बात करते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे फोकस होता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने में, प्लेस को, क्वालिटीज़ को, एटमोसफेयर को। अगर आपको स्पेसिफिकली आ गया तो आपको ये भी बताना पड़ेगा। अगर नहीं आता है और आपको लिखना है, ऐसे के बारे में आता है क्रिटिकली लिखने के लिए, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। लेंथ बनाने के लिए क्रिएटिव राइटिंग में थोड़ी बहुत आपको चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि लेंथ नहीं बनती है अगर आपको ज़्यादा पता ना हो एंड यू कैन नॉट राइट वन थिंग अगेन एंड अगेन। ऑल्दो द आइडिया इज सेम बट आपको कुछ तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो यू कैन गिव दिस कंपैरिजन एज वेल दैट डिस्क्रिप्शन फोकसेस ऑन ऑब्जेक्ट्स, डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस, क्वालिटीज, एटमोसफियर। वेयरएज़ नरेशन का काम क्या होता है, नरेशन का फोकस होता है आपका एक्शंस पे या फिर किसी पर्टिकुलर इवेंट्स पे जो चल रही होती है। डिस्क्रिप्शन हमारी थोड़ी स्टैटिक होती है, नरेशन हमारी डायनामिक होती है। डिस्क्रिप्शन विजुअलाइजेशन में हेल्प करती है। जब हम किसी पर्टिकुलर बारीकी से चीज़ों को समझा रहे होते हैं तो आपके दिमाग में एक आप कुछ विजुअलाइज कर रहे होते हो, कुछ इमेजिन कर रहे होते हो। लेकिन जो नरेशन है, जब मैं आपको एक स्टोरी बता रही हूँ तो आपके दिमाग में मूवमेंट चल रही है, एक स्टोरी चल रही है। ओके, बेसिक, ये बेसिक चीज़ है। यू नो द डिफरेंस बिटवीन नरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, सॉरी, डिस्क्रिप्शन। देन यू टॉक अबाउट कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, डिस्क्रिप्शन टाइम को स्लो कर देता है। जब मैं किसी बॉटल के बारे में समझा रही हूँ तो आई एम टेकिंग माई गुड स्वीट टाइम। आपने देखा होगा कुछ राइटर्स एक रूम को उसकी डिस्क्रिप्शन देते देते 4 पेजेस निकाल देते हैं। एंड इट डिपेंड्स, वो दे आर सेटिंग द मूड एंड डिपेंड करता है हाउ व्हाट काइंड ऑफ रीडर यू आर, यू एंजॉय दैट और नॉट। नरेशन क्या करता है, नरेशन टाइम को फॉरवर्ड ले जाता है क्योंकि वो स्टोरी को आगे ले जा रहा है। जैसे देन यू कैन गिव एग्जांपल, अगर किसी नॉवल में कोई राइटर एक रूम को इन डिटेल समझा रहा है तो वो डिस्क्रिप्शन हो गई। लेकिन अगर कोई कैरेक्टर की फाइट को दिखाया जा रहा है या फिर कैरेक्टर कहीं से किधर को ट्रैवल कर रहा है तो वो एक तरीके की नरेशन है। राइटर बताने की कोशिश कर रहा है कि या दैट पर्सन, स्टोरी में मतलब एक्शन हो रहा है, इवेंट्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और आप बोलोगे कि दोनों मतलब किसी भी वर्क में ये दोनों चीज़ों का बैलेंस होना इम्पॉर्टेंट है। सी, मैं आपको ये सारे पॉइंट्स इसलिए बता रही हूँ, मैं इसको अलग अलग बता रही हूँ ताकि आपको बेसिक आइडिया हर हर पॉइंट का हो जाए। इट इज़ ऑन यू हाउ यू गोइंग टू मेक द आंसर इन दी एग्ज़ाम। क्वेश्चन अटपटे आ जाते हैं मास्टर्स में, सो इट्स ऑन यू। English is all about your answer writing. You just need to know the points. You need to make the answer there and then. Okay? ये सारे एग्जाम्पल लेके चल लो आप, कुछ पॉइंट्स जहाँ आपको ज़रूरत पड़े, जहाँ आपको जैसा ठीक लगे, आप तोड़ मरोड़ के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इन आंसर्स को डालना, इन पॉइंट्स को डालना, कैसे भी क्वेश्चन से रिलेट करके। दैट नीड्स टू बी योर टैलेंट। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमने बात करी थी डिस्क्रिप्शन एज अ मैक्रो मोड। तो एक बार अगर हम उसको दोबारा से रिवाइज कर ले तो आपको क्या समझाया था मैंने कि डिस्क्रिप्शन एक हमारे वर्नर वुल्फ ने कहा था दैट इट इज़ अ सिमियोटिक मैक्रो मोड। इसका मतलब था कि ये एक ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जहाँ पे डिफरेंट मीडिया या फिर डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स उसको डिफरेंट तरीके से रियलाइज़ करते हैं, डिफरेंट तरीके से दर्शाते हैं या फिर अब आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल रियलाइज इन हिंदी। सो समझ जाना प्लीज़। एंड देन वी टॉक अबाउट द एग्जांपल्स। अब
वहाँ पे हमने एग्जांपल नहीं दिए थे, बट अगर आपको स्पेसिफिकली मैक्रो मोड पे क्वेश्चन आ जाता है तो इसके लिए भी आप थोड़ा इसको डिस्क्राइब करना एंड देन यू गिव एग्जांपल्स। जैसे कि फिक्शन में हम लोग डिस्क्रिप्शन यूज़ करती है सेंसरी डिटेल्स या फिर इमेजरी को, ताकि वो डिस्क्राइब कर सकें। ठीक है, सेंसरी डिटेल्स, इमेजरी, सिंबलिज्म, आयरनी, लिटरेचर, यू कैन गिव एग्जांपल्स। पेंटिंग्स में आप कलर्स, विजुअल डिटेल्स देते हो डिस्क्रिप्शन के लिए। म्यूज़िक में आप रिदम, टेम्पो, मेलोडी, ये सब चीज़ों से डिस्क्राइब करते हो। इसीलिए आप कहोगे कि हर मीडियम का अपना अपना तरीका होता है डिस्क्राइब करने का। एवरी मीडियम हैज़ इट्स ओन डिस्क्रिप्टिव टेक्निक्स। दैट इज़ द होल आइडिया अबाउट द एसे। और आप, चाहे आपको कुछ आ रहा है, ट्रांसमीडियल मोड पे क्वेश्चन है, मैक्रो मोड पे क्वेश्चन है, दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया। थोड़ा थोड़े मतलब कॉन्सेप्ट्स थोड़े डिफ़र कर सकते हैं। ट्रांसमीडियल का मतलब है डिफरेंट मीडिया में होना, प्रेजेंट होना। मैक्रो मोड का मतलब है एक ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना, जहाँ पे डिफरेंट मीडियम्स अलग तरीके से उसको रियलाइज़ कर रहे हैं, बट ओवरऑल आइडिया सेम रहेगा। तो क्वेश्चन से डरना नहीं है। जो क्वेश्चन आता है, आपको जो आंसर आता है, इन पॉइंट्स को जोड़ जड़ा के आपने वो लिख के आना है। अटेम्प्टिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड देन विल टॉक अबाउट डिस्क्रिप्शन इन फिक्शन। अब हम जा रहे हैं उन 3 सेक्शंस की तरफ, फिक्शन में, पेंटिंग में, म्यूज़िक में। ओके, ये चीज़ अगर क्वेश्चन में आ जाती है कि किस तरीके से ऐसे में उन्होंने कंपेयर करा है इन 3 चीज़ों को, तो वो आप स्पेसिफिकली बताओगे। अगर हम बात करें डिस्क्रिप्शन इन फिक्शन की, तो हम कहते हैं कि लिटरेचर हैज़ ट्रेडिशनली द मेन एरिया वेयर द क्रिटिक्स यूज टू स्टडी अबाउट डिस्क्रिप्शन। ओके, यही हमने पीछे बात करी थी। तो अगर हम यहाँ पे अब फिक्शन के फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से वो लिटरेरी डिस्क्रिप्शन दिखाता है। पहले तो थ्रू यूज़ ऑफ लैंग्वेज, ये आपको पता है। बस कभी कभी ऐसा होता है, यू यू फील कि आपको कुछ चीज़ें आती होती है, बट आपको नहीं पता कि ऐसे में भी वो बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज़ें लिखी हुई है, क्योंकि आप इतना पढ़ते नहीं हो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले। सो इट्स जस्ट बेसिक। बेसिक भी लिख लोगे, मेन आइडिया ही पूछना पूछना है वहाँ पे। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फीचर्स, पहले आप बात करोगे यूज़ ऑफ लैंग्वेज। दैट when we talk about description, so we say that writers describe through imagery, metaphors, adjectives, sensory words. Then we talk about spatial representation. Yeah, for spatial representation, I don't know how do you pronounce it, like spatial. And we say that description often explains the landscapes, rooms, faces, weather. आपको पता है, पहले आप बताओगे कि लैंग्वेज के थ्रू डिस्क्राइब कर रहे हो, फिर आप बताओगे कि क्या डिस्क्राइब कर रहे हो। कोई ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब करते हैं हम लिटरेचर में, कोई प्लेस, लैंडस्केप, या फिर किसी की पर्सनालिटी भी, मतलब अगर किसी को आपने बताना हो तो उसकी भी डिटेलिंग दी जाती है नॉर्मली फिक्शंस में। और जो हमने पहले भी बात करी थी, पॉज इन नैरेटिव, डिस्क्रिप्शन क्या करता है, यूजुअली स्लो डाउन कर देता है स्टोरी की गति को। एंड जैसे कि आप बोलोगे कि अगर हम रियलिस्ट नॉवेल्स की एग्जांपल ले लें, तो रियलिस्ट नॉवेल्स में लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस थोड़ा रियलिज्म का एटमॉस्फेयर बना देता है। और इफ़ वी टॉक अबाउट व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट द फीचर्स, लैंग्वेज का यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए। और क्या डिस्क्राइब करते हैं, लैंडस्केप हो गया हमारा, रूम्स हो गए, पर्सनालिटी हो गई। और थर्ड पॉइंट हो गया आपके फीचर्स में पॉज इन स्टोरी और पॉज इन नैरेटिव। ठीक है, 3 पॉइंट्स की फीचर बता दी। अब फंक्शन बता दो इसी डिस्क्रिप्शन के। फिक्शन चल रहा है अभी। ओके, अब फंक्शन बताते हैं, तो फंक्शन में आएगा इट क्रिएट्स रियलिज्म। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ की डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं इट फील्स रियल। अगर आप ऐसे ही चीज़ें दिखाते जा रहे हो, सिर्फ नरेट करते जा रहे हो, तो या इट लुक्स दैट इट इज़ नॉट रियल। फिक्शन को रियल जो चीज़ बनाती है वो है डिटेलिंग। तो जब डिटेल डिस्क्रिप्शन दी जाती है, व्हेन देयर इज अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ any fiction, it makes fiction believable. And you can give example that describing a city with sound, smell, people creates authenticity. And then we move forward, then we talk about the second point, that is building atmosphere. ऑफ कोर्स, आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो एक तरीके का मूड सेट करती है नॉवल में, या फिर एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल, लाइक वी टॉक अबाउट
any emotional scene, or we talk about the forests, like if we talk about dense thick forests, it shows sense of fear in novels. Then we talk about third point, that is characterization. Characterization, अगेन आपको किसी की पर्सनालिटी दर्शानी है, पर्सनालिटी दिखानी होती है जब राइटर को, तो वो उसके जेस्चर्स के बारे में दिखाता है कि वो व्हाट हाउ द पर्सन is acting, or what type of clothes that person is wearing, या फिर रूम का माहौल दर्शाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन दी जाती है। एंड जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं, अ मेसी रूम रिफ्लेक्ट्स कन्फ्यूजन। कभी कभी जब शुरुआत होती है, आप देखते हो नॉवेल्स में डिप्रेस्ड इंसान की, तो उसकी रूम की डिस्क्रिप्शन दी जाती है, दैट रूम इज़ मेसी। सो इट शोज कबर्ड इज़ मेसी, इट शोज कि उसकी मेंटल स्टेट भी दर्शाई जा रही है थ्रू दैट रूम। ओके, देन वी टॉक अबाउट सिंबलिज्म। सिंबलिज्म कैसे है कि ऑब्जेक्ट्स जो है जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो कुछ डीपर मीनिंग दिखा रहे हैं, सेम बट यू राइटिंग स्पेसिफिकली अंडर इट, अंडर सिंबलिज्म। जैसे कि अगर हम बात करें कोई डिकेइंग हाउस की नॉवेल्स में, अ डिकेइंग हाउस में सिंबलाइज डिक्लाइन इन द मॉरल्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फंक्शंस वी से, अगर फंक्शंस के बारे में बात की जाए हमारे फिक्शन की, तो हम बोलते हैं पहला, ये रियलिज्म क्रिएट करता है, एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, करेक्टराइजेशन, करेक्टराइजेशन मतलब पर्सनालिटी को भी दर्शाने में हेल्प करता है, एंड फोर्थ इज सिंबलिज्म, सिंबलिज्म भी क्रिएट करता है। ओके, देन वी टॉक अबाउट सेकंड कंपैरिजन जिसके साथ वो ड्रॉ करते हैं, और या फिर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है पेंटिंग के बारे में। अब जो हमारे वार्नर वुल्फ हैं उनका क्या आर्ग्यूमेंट है कि जो पेंटिंग है इट इज़ नेचुरली डिस्क्रिप्टिव। ट्रू, बिकॉज विजुअल आर्ट presents the object directly. Like if we talk about the features of any painting, we say that it is not like not like literature. I'm sorry, it is not like literature because painting presents everything at once. यहाँ कोई स्टोरी बिल्डअप, मतलब स्टोरी है बट वो बिल्ड अप नहीं हो रही है, उसमें आपको एक इंट्रोडक्शन नहीं दी जा रही है, उसमें वहाँ पे आपको सब कुछ एक साथ है। पूरी आपको पेंटिंग दी जाती है, जहाँ आपकी पहले नज़र बने वहाँ से आपकी स्टोरी शुरू हो जाती है, वहाँ से आप मेंटल इमेज बनानी शुरू कर देते हो। अनलाइक एनी लिटरेचर जहाँ से राइटर आपको शुरू से एक कहानी की यू नो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, एंड देन आपका पूरा एक्शन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ पेंटिंग, पहला तो आप बोलोगे कि पेंटिंग नेचुरली डिस्क्रिप्टिव होती है बिकॉज विजुअल आर्ट्स प्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। फीचर्स हम बात करते हैं, पहला फीचर आता है साइमल्टेनिटी का, साइमल्टेनिटी का। क्यों? क्योंकि लिटरेचर की तरह नहीं है हमारी पेंटिंग। पेंटिंग प्रेजेंट्स एवरीथिंग एट वंस, अ व्यूअर सीज द कलर फॉर्म कॉम्पोजिशन ऑल टुगेदर। अलग अलग से नहीं दिख रहा है, कलर आप पहले देख रहे हो, फिर आप एक फॉर्म देख रहे हो, फिर आप देख रहे हो किस तरीके से उसको कंपोज किया गया है। नहीं, पेंटिंग में आप जब देखते हो यू सी ऑल थिंग्स ऑल टुगेदर। ठीक है, फर्स्ट आ गया साइमल्टेनिटी, पहला फीचर। दूसरा आ गया स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन। पेंटिंग बेसिकली डिस्क्राइब करती है थ्रू स्पेस रादर देन टाइम। डिस्क्रिप्शन, अगर हम फिक्शन के बारे में बात करें तो वहाँ पे थोड़ा टाइम का फ़र्क होता है। एक बच्चे को छोटे सा दिखाया जाता है, फिर वो ग्रो करता है, लाइक फिर उसका बुढ़ापे तक पूरा एक स्टोरी दिखाई जाती है। लेकिन पेंटिंग में क्या होता है, पेंटिंग में थ्रू स्पेस दिखाया जा रहा है रादर देन टाइम। टाइम की उतनी डिस्क्रिप्शन नहीं होती है, मोस्टली इट इज़ अबाउट स्पेस। जैसे कि अगर हम आप एग्जांपल दे दोगे यहाँ पे लैंडस्केप पेंटिंग का, लैंडस्केप पेंटिंग क्या डिस्क्राइब करती है, नेचर को थ्रू विजुअल आर्ट, और विजुअली आप देख पाते हो नेचर को पेंटिंग के थ्रू। देन वी टॉक अबाउट डिटेल एंड रियलिज्म। थर्ड फीचर इज डिटेल एंड रियलिज्म, दैट पेंटर्स यूज डिटेलिंग थ्रू texture, perspective, light, or color in order to create that depth or descriptive richness. ठीक है, एग्जाम्पल दे देना आप, पेंटिंग में रेनेसा आर्ट का दे सकते हो, डच रियलिज्म का दे सकते हो, बिकॉज बोथ ऑफ देम क्रिएट मीनिंग थ्रू विजुअल डिटेल। सो जब हम बात करेंगे पेंटिंग की,
आपने पहले बता देना है what was Werner Wolf's idea that painting is naturally descriptive because visual art presents objects directly. फिर आप तीन फीचर्स के बारे में बात करोगे साइमल्टेनिटी का, क्योंकि लिटरेचर की तरह नहीं होती, यहाँ पे आपको सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। दूसरा होता है आपका स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन का, थ्रू स्पेस यहाँ पे आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो दी जाती है रादर देन टाइम। आप एग्जांपल दोगे लैंडस्केप पेंटिंग का, कंपल्सरी नहीं है फॉर दोज जहाँ जिनको एग्जांपल याद नहीं आएगी उस टाइम, तो आप डायरेक्टली यही एग्जांपल्स लिख लो जो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते या फिर लास्ट मोमेंट पे देख रहे हैं। एंड थर्ड इज़ डिटेल एंड रियलिज्म। पेंटर्स और टेक्सचर, पर्सपेक्टिव, लाइट, कलर, बहुत अलग अलग बारीक डिटेलिंग करते हैं ताकि वो डिस्क्रिप्टिव रिचनेस कर सके, दिखा सके। ठीक है, तो दोनों आपने मीडियम्स में देखा होगा डिफरेंसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट या एग्जाम्पल मैंने बताए थे रेनेसा आर्ट और डच रियलिज्म, याद रखने हैं, लिखोगे अच्छा दिखेगा। हम्म? और ये भी लिखना है कि रेनेसा आर्ट, डच रियलिज्म मीनिंग ही विजुअल डिटेल से दिखाते हैं, दर्शाते हैं। एंड देन वी टॉक अबाउट डिस्क्रिप्शन इन म्यूजिक, थर्ड। आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो शॉर्ट बट मैं इतना स्लो डिस्क्राइब करती हूँ कोई भी चीज़ या फिर एक्सप्लेन करती हूँ दैट इट टेक्स टाइम, आई एम सॉरी। सो लेट्स टॉक अबाउट डिस्क्रिप्शन इन म्यूजिक। अब वर्नर वुल्फ का क्या आर्ग्यूमेंट है जब हम डिस्क्रिप्शन इन म्यूजिक के बारे में बात करते हैं, तो वर्नर वुल्फ कहते हैं दैट पीपल ऑफन थिंक दैट म्यूजिक कैन नॉट डिस्क्राइब बिकॉज इट हैज़ नो वर्ड्स और इमेजेस। ही इज़ टॉकिंग अबाउट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक राइट नाउ। अब ये मत सोचना कि म्यूजिक में वर्ड होते हैं, म्यूजिक यहाँ पे अभी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की बात हो रही है। तो वुल्फ क्या कहते हैं कि this is a misconception that people have, that music cannot describe because it does not have any words or images. Rather, he says that instrumental music can also describe. How? Through sound imitation. Music can imitate natural sounds. जैसे कि आपको पता है, आपने बहुत सुना होगा, like it imitates the sounds of nature, birds, storms, rivers. Second is mood or atmosphere. आपका म्यूज़िक एटमॉस्फेयर या फिर मूड क्रिएट करने का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। सो इट डिस्क्राइब्स, अगर स्लो मेलोडीज़ बज रही है तो वो आपका क्या सैडनेस को दर्शा रही है। फास्ट कोई सॉन्ग बज रहा है, यू नो दैट इट इज़ एन एनर्जेटिक सॉन्ग, तो वो एटमॉस्फेयर मूड बना रहा है। हम लोग वी नो इट बेटर। व्हेन यू आर डिप्रेसिव, आप खुद को और सैड करने के लिए सैड सॉन्ग सुनते हो। इट इज़ नॉट इवन अबाउट सॉन्ग्स, मतलब ऐसे मत सोचो कि मैं अभी वो लिरिक्स की बात कर रही हूँ। अगर म्यूज़िक को सिर्फ म्यूज़िक के लेके चलो तो उसमें भी बहुत फ़र्क होता है। सैड म्यूज़िक का भी पता चल जाता है, वो अपने तरीके से सैडनेस को डिस्क्राइब कर रहा होता है। एंड देन वी टॉक अबाउट प्रोग्राम म्यूज़िक, दैट सम म्यूज़िक टेल्स और सजेस्ट सीन्स एंड इमेजेस। अब ड्रामास में ले लो तो म्यूज़िक होता है वहाँ पे भी, जब आपको कुछ ड्रामेटिक चीज़ करवानी हो। इवन सीरियल्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल। सीरियल्स में आप ले लो, अगर कुछ ड्रामेटिक चीज़ करवानी है तो पीछे से वो गाना नहीं बजाते हैं, कभी कभी वो सिर्फ एक म्यूज़िक इफेक्ट डालते हैं इन ऑर्डर टू शो द इंटेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सीन। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन अगर हम बात करें म्यूज़िक कैसे दिखाता है, तो आप तीन चीज़ों के बारे में बात करोगे। पहला है साउंड इमिटेशन, कि जो हमारा म्यूज़िक है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है, वो इमिटेट कर सकता है नेचुरल साउंड्स को। और दूसरा आप बात करोगे मूड और एटमॉस्फेयर सेट करता है। थर्ड आप बात करोगे प्रोग्राम म्यूज़िक की, जो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ सीन्स को सजेस्ट करने में या इमेजेस को सजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमने पहले भी बोला है कि हर मीडिया या फिर हर आर्ट इज़ डिफरेंट। एवरी मीडियम हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस एंड पॉसिबिलिटीज़। अगर लिटरेचर के बारे में बात करें, सो लिटरेचर describes in a very precise verbal manner, whereas when we talk about painting, it creates immediate visual presentation. And then we talk about music. Music creates an emotional or atmospheric effect. Okay, no medium, these three mediums do not describe in the same manner, exact same manner में तो description नहीं है तीनों में। ठीक है, एंड अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है,
that is descriptimes. Descriptimes, DESCRIPTEMES, descriptimes, ये आइडिया देते हैं हमारे वर्नर वुल्फ. वर्नर वुल्फ introduced the idea of descriptimes. What does this word mean? इसका मतलब है फीचर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्टिमीज, ये आइडिया दिया था हमारे वार्नर वुल्फ ने, इसलिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा मेंशन कर लेना इसको भी, क्योंकि ही इंट्रोड्यूस दिस आइडिया. So descriptimes is basically the basic elements or features of description, and they include five things. First is spatiality. Then we have detail, simultaneity, sensory richness, and object focus. ये पांच elements: spatiality, detail, simultaneity, sensory richness, and object focus. Five things you need to remember. सिर्फ ये पांच चीज़ें हैं जो अच्छे से रट जाना डिस्क्रिप्टिव के अंदर. बाकी तो समझने वाली चीज़ें हैं, वो तो आप कर लोगे. सो ये जो पांच एलिमेंट्स हैं, जो डिस्क्रिप्टिव है, जो ये फीचर्स है, ये डिस्क्रिप्शन के फीचर्स है. और यही पांच फीचर्स है जो हमारे वॉर्नर वुल्फ कहते हैं कि हमें हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई डिस्क्रिप्शन अक्रॉस डिफरेंट मीडियाज, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स. ये पांच चीज़ें अगर किसी मीडियम में है या फिर आर्ट फॉर्म में है और इस तरीके से डिस्क्रिप्शन दी जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि येस, दिस इज़ दी करेक्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग, और कोई मीडियम सही तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मीन्स आप थोड़ा सा समझा लेना. एंड देन वी हैव this essay is important if we talk about intermediate studies. You may add this idea as well कि ये essay कहीं ना कहीं important है for intermediate studies. Intermediate studies is the study of relationships between different media. क्योंकि पूरी ऐसे ही आपकी किस बारे में थी, स्टार्टिंग में ही कहा गया है दैट इवन ऐसे का नाम ही यही है, दैट डिस्क्रिप्शन एज अ ट्रांसमीडियल मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन. ट्रांसमीडियल मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या था? एक फिनोमेना या फिर कोई चीज़ जो एग्जिस्ट करती है मल्टीपल मीडियाज़ में या फिर मेनी मीडियाज़ में, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स में. तो ये इसीलिए आप कह सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो आप ये कह के, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि आपको कुछ समझ आया इस ऐसे का, दैट दिस ऐसे इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंटरमीडिएट स्टडीज़ क्या होती है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट मीडियाज़. तो यहाँ पे आपने पढ़ा, आपने डिफरेंट मीडियाज़ के रिलेशनशिप पढ़े. डिफरेंट मीडियम कौन हो गए? डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, फिक्शन और लिटरेचर, या फिर पेंटिंग और म्यूज़िक. ये तीन मीडियम्स के रिलेशन के बारे में पढ़ा ना आपने, तो इसलिए इंटरमीडिएट रिलेशन में हेल्प करती है. एंड अगर हम वुल्फ के ऐसे के बारे में बात करें, वर्नर वुल्फ के ऐसे ने कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिप्शन का एक छोटू सा हमारे अंदर डेफिनेशन दी, दैट ओके, डिस्क्रिप्शन इज जस्ट merely डिस्क्राइबिंग थ्रू वर्ड्स, वो चेंज करा है. ही हैज़ एक्सपेंडेड दिस थ्योरी बियॉन्ड लिटरेचर, एंड ही हैज़ in this essay compared literature, music, painting together. Therefore, this is very important for interdisciplinary studies. And this essay redefines description, and that is all. You have to write all these points, and you can make a good answer if you will highlight or if you will remember these points mainly. मेजर पॉइंट्स याद रख लेना, और उसके अंदर का थोड़ा थोड़ा वीडियो सुन लोगे तो कुछ ना कुछ याद रह जाएगा. इट इज़ नॉट एज कॉम्प्लेक्स एज इट सीम्स in those pages. So that's all for today, and I hope you like it. And I will attach the notes as well. Bye bye. See ya. Thank you. And please like, share, and subscribe to my channel because this helps me to grow. So, yeah, take care of yourself.